زمانہ قدیم میں کسی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا۔ اس لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کرے اور دشمن اس کے غلام بن جائیں۔ بادشاہ کی اپنی موجودہ رعایا بھی اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ صرف مشورے دیتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہیں تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ بادشاہ جنگل پہنچے اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا تو رستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس شخص کے قریب گئے اور اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ پاگل بادشاہ کی پوری سلطنت بچائے گا، اس بات کا کسی کو گمان تک نہیں تھا۔ لہٰذا پاگل شخص نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو اور تمہاری ساری رعایا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی جو کسی عام پاگل کے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا پھر کسی ایسے شخص کے جو دلیر اور غیر معمولی ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا۔ وہ آپس میں چپ کے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم اس کے تابع بن جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ دھیمے سے ایک درباری نے کہا، یہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سب پر حاوی ہو جائے۔ دوسرے نے جلدی سے بولا، نہیں، یہ تو آدھا پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لہٰذا بادشاہ کو کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ درباریوں کا ماننا تھا کہ یہ شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالآخر درباریوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے۔ اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا، اور اگر واقعی پاگل ہوا تو اسے بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کہا اور کچھ دباؤ ڈال کر اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری سمت موڑ دیا اور کوشش کی کہ فرار ہو جائے۔ بادشاہ اور اس کے درباری فوراً اس کے پیچھے لگ گئے۔ تعقب کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ قابو میں لے آئے اور اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب وہ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا، یہ کس بات کی مبارکباد ہے؟ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، جس راستے سے آپ شیر کے لیے گئے تھے وہاں دشمن کی بھاری فوج گھات میں بیٹھی تھی، جبراً اسلحے کے ساتھ۔ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں حیرت، شکر اور فکر کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگوں نے پھر خوشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل دیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی معمولی نہیں، کچھ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے۔
चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। ये होता है ज्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाज़ा जन्म लेने लगा। दरबारी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल इन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत ये गवारा न कर सके कि एक अजनबी और वो भी पागल कहलाने वाला इनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और इसके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करे उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इज्जत व जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। भाई साहब, आप पर सलामती हो। हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलतफहमी में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसकी वजह से आपको सजा भुगतना पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब? मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है? मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनकर रियाया के चेहरों पर हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, मगर बादशाह के खौफ से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकते थे, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं कि अगर आप हमारी बात माने तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सजा के लफ्ज से पहले ही खौफजदा था, फौरन घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जेरे कब्जा थी, आगे बढ़ा और मौजून अंदाज में बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज तब होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल, जो अकल से बिल्कुल पीछे था, फौरन बोला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूं। रियाया ने उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी छुपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया। जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाओ और उसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करो। फिर देखना, बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेरों इनामात से नवाजेगा। पागल ने भोलेपन से बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर वराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारी। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टकराया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे ये समझने में देर ना लगी कि अगर वो ताज सर पर रख लेता तो बिच्छू उसे काट देता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया और खुशी से कहा, मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर ये मुझे थप्पड़ न मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए शानदार दावत का एहतमाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। रियाया, जो पहले ही इससे हसद में मुब्तला थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला जारी रहा तो ये पागल इन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। लिहाजा वो आपस में सरगोशियां करने लगे, यार, ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी सब इज्जतें और रुतबे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये रियाया तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं। देखो कितना जबरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे वो ही मानूंगा। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे, हम तुम पर हमला करेंगे, बस तुमने हमारे जर्नेल को मारना है, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। रियाया ने यह साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गई। अब सिर्फ एक काम बाकी था,
अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। लिहाजा रयाया ने अपने चंद आदमियों को जख्मी कर लिया और बादशाह के सामने आकर कहा, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग के ढोल बजा दिए और अपनी फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिया। अब लश्कर का सिपा सालार पागल था, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ ना कर सकते थे। सिर्फ पुष्ट पर लोग हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ। सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा, क्योंकि वो कमांडर हैं। पूरे लश्कर ने रुक कर इंतजार किया। पागल ने जोर से आवाज दी, ऐ बादशाह, बाहर आओ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंग के दरमियान आमना सामना हो गए। अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकल आया और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था और दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मारकर दुश्मन बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर वापस लाया। दुश्मन बादशाह खून में लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर उसने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी। मैं इस कमांडर को माफ करता हूं, उसने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गुस्से से कहा, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को भी हाथ लगाया तो। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल की शोहरत पूरी रियासत में फैल गई। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए, यहां तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी की शादी में दे दिया। रियाया, जो पहले ही अंदर से जल रहे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रह गए, लेकिन हर कदम पर पागल की मुखालफत करने का मंसूबा बना रहे थे। अब दोनों रियासतें एक होने लगीं, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन रियाया ने एक नया जाल बिछाने का फैसला किया। एक दूसरे से बोलने लगे, अगर इस पागल को हम ना रोकें तो कल हम सब इसके गुलाम बन जाएंगे। इसे खत्म करना जरूरी है। सब ने एक जुबान होकर हां कर दी। लेकिन एक बूढ़ा मशीर भी था, तजर्बाकार और दिल का नर्म। उसने बड़ी अक्लमंदी से कहा, दोस्तों, दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक खास मकाम, हैसियत और सिफत अता की है। और याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। अगर तुमने इसे मार भी दिया तो उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। वो सांस लेकर बोला, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वो बज़ाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफ्त अता की है। किस्मत अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सब रियाया ने अपने हसद पर तौबा की और कुछ वक्त बाद पागल वफात पा गया। रियाया दोबारा अपने रुतबे पर फाइज हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी बज़ाहिर एक मिजाहिया कहानी लगती है, लेकिन इसमें एक हकीकी सबक छुपा है। अल्लाह की तकदीर और नसीब पर ईमान रखो। किसी के ओहदे या रुतबे पर हसद ना करो। सच्चाई और वफादारी इख्तियार करो। जिसे अल्लाह इज्जत दे, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। तारीख गवाह है कि मुनाफिक लोग और हसद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा मैदान सच्चे लोगों का होता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।